A particle is acted upon by a constant force, और फोर्स का वैल्यू कुछ दे रखा है ना. What is the value of force is the F is given as 4i cap plus j cap minus 3 k cap. ये force है. Obviously the force will be Newton and अच्छा दूसरा force है, दो forces है. This is F1 and this is F2. F2 is given as 3i cap plus j cap minus k cap. तो नेट फोर्स निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड कर लो, F1 plus F2. ठीक. So what will be the answer? 7i cap plus 2j cap minus 4k cap. ठीक है. And is displaced from some position vector to another position vector, that is from I cap minus plus 2j cap minus 3k cap to which point it is displaced? 5i cap plus 4j cap minus k cap. So particle को इस position vector से इस position vector तक displace किया गया. That means it is, let's say, position vector r1 and it is position vector r2. So what is the displacement of the particle? Dr vector is nothing but r2 minus r1. It is change in position. समझ में आ रहा है? This is the change in position and this is nothing but displacement of the particle. Change in position vector is nothing but displacement. ये बात clear है? Yes, sir. So what will be delta r? Let's say this is delta r. So delta r vector or dr vector, whatever you say. If dr we take notation for very small displacement and delta r we take this notation for large displacement. So obviously here the displacement is large. तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? डेल्टा आर लेंगे. तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस माइनस, सो इट इज प्लस 2. बोलो ये क्लियर है? Yes, sir. 5 में से 1 माइनस किया 4 आ जाएगा, 4 में से 2 माइनस किया 2 आ जाएगा, -1 में से -3 माइनस करूंगा तो +2 आ जाएगा. सो व्हाट इज द वर्क डन? सो जस्ट वी हैव टू अप्लाई दिस फार्मूला F डॉट डेल्टा आर. सो दैट इज नेट फोर्स. तो ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके देखो क्या आता है. What will be the dot product of this quantity and this quantity? इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या है? इस समझ में आ रहा वर्क डन का फॉर्मूला? Yes, sir. तो बेसिकली वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. पर यहाँ डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा आर से डिनोट कर रहे हैं. वी कैन आल्सो डिनोट बाय एस. देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. And S is nothing but the change in position vector, which is not delta R or S, whatever you say. So it is F net into S. तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? I का I के साथ करोगे तो क्या? 28 plus 4 minus 8. minus 8. 28 plus 4 minus 8 plus 4 minus 8. Is it clear? Yes, sir. So it is 28 minus 4, which is equal to 24 joule. Clear or not? Yes, sir. Clear. चलिए next question. So next question we'll see. A dot B is equal to minus A minus B. So this is the magnitude. A dot B का magnitude देखा. A dot B को क्या लिख सकते हैं? What we can write A dot B? A dot B को हम लिख सकते हैं magnitude A magnitude B cos theta. लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं. So this is the magnitude of A and this is magnitude of B. इसको मैं A B cos theta लिख सकता हूँ, और ये भी magnitude of A और magnitude of B है, तो इसको भी मैं A B लिख सकता हूँ. अब क्या होगा? अब A से A उड़ जाएगा, B से B उड़ जाएगा, तो cos थीटा आ जाएगा -1. व्हाट इज द थीटा? cos थीटा -1 कौन सी वैल्यू की होता है? 120. नो, cos 120 हाफ होता है, माइनस हाफ. बेसिकली ऑब्वियसली इन सेकंड क्वाड्रेंट cos इज नेगेटिव, दैट इज क्लियर. cos नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में,
और cos 0 जो होता है वो 1 होता है, तो यहाँ पे आएगा -1, तो cos 180 -1 होगा। बोलो क्लियर और नॉट? Yes, sir, clear. तो cos थीटा का वैल्यू क्या आएगा? 180। तो इसका मतलब ए और बी वेक्टर क्या पैरेलल है कि एंटी पैरेलल? Parallel. एंटी पैरेलल बेटा। अगर दो वेक्टर ऐसे हैं ए और बी, इसका मतलब है ए और बी के बीच में एंगल कितना है? 0। 0. एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 0। लेकिन अगर दो वेक्टर ऐसे हैं, एक वेक्टर ऐसा और दूसरा वेक्टर ऐसा, तो नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए? 180। Yes, sir. 180 हुआ कि नहीं हुआ? इसको यहां शिफ्ट कर दो, तो या इसको ए को यहां शिफ्ट कर दो। तो इफ आई शिफ्ट ए हियर, तो यहाँ ए को ऐसे शिफ्ट करूंगा। नाउ टेल टू टेल ये एंगल कितना हुआ? 180 हुआ। Yes, sir. सो these two vectors are एंटी पैरेलल और पैरेलल? Anti-parallel. पैरेलल। देखो लाइंस के बीच में कोई ऐसा एंटी पैरेलल और पैरेलल का कोई सेंस नहीं होता। दो लाइन है, अभी दोनों लाइन पैरेलल ही बोलोगे, इसमें एंटी पैरेलल पैरेलल का कोई सेंस बैठता नहीं है। लेकिन वेक्टर के केस में बैठता है। वेक्टर अगर ऐसा हो तो पैरेलल, और अगर ऐसा हो तो उसको एंटी पैरेलल बोला जाए। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? Opposite direction. C. Yes. A and B are acting in opposite direction. A and B are acting in opposite direction. ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, अगर क्वेश्चन में ऑप्शन ये नहीं दे रखा होता और एंटी पैरेलल का ऑप्शन दे रखा होता तो ये भी ट्रू हो जाता। बोलो ये बात समझ में आती है? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नोट करना है आपको, मैंने पिछला क्वेश्चन में कुछ ज्यादा रहने नहीं दिया आपके। नहीं सर, 1 सेकंड। ओके। और अदरवाइज आई विल सेंड यू पीडीएफ ऑफ। हाँ नोट तो ये करते वाला जाओ। मैंने नोट कर लिया। मैं पीडीएफ सेंड कर नहीं पाता हूँ, मैं एक्चुअली भूल जाता हूँ, क्योंकि बहुत तो आलस यार मैंने नोट कर लिया। लैपटॉप से निकाल करके और फिर इसमें करना बड़ा दिक्कत है। हाँ हो गया। हाँ सर, ये वाला मैंने कर लिया है। चलिए और ये वाला हाँ सर, वो वाला करना है। कर लो। यस सर, डन। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है a cos थीटा i कैप प्लस b sin थीटा j कैप। एक ऐसा सवाल है एंड वी हैव टू फाइंड अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। कोई वेक्टर है, मान लो लेट्स से दिस वेक्टर इज a वेक्टर, तो हमको एक ऐसा वेक्टर निकालना b वेक्टर जो कि a के परपेंडिकुलर। सो दिस टू वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो परपेंडिकुलर वाला केस क्या होता है? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। ए बी cos 90 हो जाएगा ना ये? यस सर। ये 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? देखो हो ये जाएगा। चीज आपको पता होना चाहिए। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर दे रखे हैं या ऐसा कुछ दे रखा है, तो आपको तुरंत से फटाक से स्ट्राइक करना चाहिए दिमाग में, यहाँ डॉट प्रोडक्ट से वेक्टर का क्वेश्चन है तो डॉट प्रोडक्ट से हो जाएगा। और अगर आपको दो वेक्टर पैरेलल दे रखे हो, है ना, दो के ए और बी पैरेलल है, तो उस वाले केस में आपको क्रॉस प्रोडक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट उसमें 0 हो जाएगा। ए बी साइन 0 एंड क्या। यस सर। समझ में आता है? यस सर। तो ठीक है, हम विल यूज दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हियर। सो लेट्स से बी वेक्टर का वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन मैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप बोल देता हूँ बी वेक्टर को।
ठीक है, अभी मैं इनको डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, ए डॉट बी, क्या आएगा बताओ? ax cos theta plus by sin theta. by sin theta, very good. And this should be equal to 0 as per this property. Yes, sir. So this should be equal to 0. So यहाँ से हम ax cos theta is equal to minus by sin theta लिख सकते। ओके, सो मैं x by y का रेशियो निकाल लेता हूँ। देखो इस वाले क्वेश्चन में आप आंसर डायरेक्टली नहीं निकाल पाओगे, x और y की डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकल पाएगी, लेकिन आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। यू हैव टू चेक बाय ऑप्शन। कोई भी दो वेक्टर लो, जैसे पहला ऑप्शन दे रखा आपको b sin थीटा आई कैप माइनस a cos थीटा जे, इसको हमने बोला x, इसको हमने बोला y। अगर मैं x y बाय का अगर रेशियो लूं तो यहाँ पे क्या आने वाला है, b sin थीटा अपॉन माइनस a cos थीटा। एज इट इज आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अभी एक और ले लेते हैं अपन, लेट मी टेक अनदर। तो बी ऑप्शन क्या दे रखा है? बी ऑप्शन दे रखा है 1 अपॉन a sin थीटा आई कैप माइनस 1 अपॉन b cos थीटा जे कैप। इसको अगर मैं x बोल दूं, इसको y बोल दूं, और x और y का अगर रेशियो लूं तो क्या आएगा, 1 अपॉन a sin थीटा डिवाइडेड बाय माइनस 1 अपॉन b cos थीटा। तो ये भी b ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये भी सही है इसके हिसाब से। तो ये समझ में आ रहा है? यस माइनस b sin थीटा यस अपॉन a cos थीटा। तो ये ऐसे आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। वंस यू गेट टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट तक पहुंच गए, नाउ इट्स टर्न टू गो थ्रू द ऑप्शंस। ऑप्शंस के थ्रू आप जाकर के चेक कर पाओ। नेक्स्ट है 5k ओके कैप। सर। 5k कैप क्या परपेंडिकुलर है इस वेक्टर के? यस, 5k कैप भी परपेंडिकुलर है। अगर मैं 5 का k कैप का i कैप के साथ मल्टीप्लिकेशन करूं तो क्या आएगा? जे कैप अरे जीरो, i डॉट के क्या आएगा? 0। 90 डिग्री एंगल है ना दोनों के बीच में, ये भी और ये भी तो परपेंडिकुलर है, यस सर। और ये भी और ये भी परपेंडिकुलर है। बी sin थीटा जे कैप और के कैप भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इसका अगर डॉट प्रोडक्ट किया जाए, लेट्स से इन नेक्स्ट स्लाइड आई एम डूइंग दिस, इस क्वांटिटी का बी sin थीटा जे कैप और इसका 5 के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो क्या आएगा? शुड इट बी जीरो और नॉट? इट शुड बी 0। इट शुड बी जीरो, क्योंकि आई कैप के कैप के भी परपेंडिकुलर है तो इनको तो जीरो हो जाएगा, और जे कैप भी के कैप के परपेंडिकुलर है तो इनका भी जीरो हो जाएगा, तो इट शुड जीरो। अगर आपको ऑप्शन में कुछ ऐसा दिए रखा होता -8 के कैप, तो क्या होना चाहिए था? जीरो होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए? लेट्स से सम ई ऑप्शन सर 0 होना चाहिए था। जीरो होना चाहिए था, है ना? तो इसका मतलब दो चीजें हो गई। अगर आई कैप जे कैप दे रखा है तो एक तो वो चीज जो हमने यहां देखी कि ये रेशियो अगर होगा दो वेक्टर के बीच में, मतलब दो इसके बीच में, अगर आई और जे का वेक्टर है तो, और इस रेशियो में है, तो अगर डॉट प्रोडक्ट होगा तो जीरो होगा। अदरवाइज कोई ऐसा वेक्टर हो, सी वेक्टर, जो कि के कैप डायरेक्शन में हो, तब भी इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। बोलो क्लियर? यस सर। अगर आई और जे में हो वेक्टर तो ये इसके जो कॉफिशिएंट है एक्स और वाई, उनका रेशियो ये होना चाहिए, सो दैट डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाए। पहली बात तो ये। अदरवाइज इसका जो आई कैप और जे कैप का डॉट प्रोडक्ट इस के कैप के साथ भी जीरो होगा, तो इसका मतलब ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके सर। क्लियर? यस सर, आखिरी वाला थोड़ा कम। प्रैक्टिस करनी है। देखो आखिरी वाला ऐसा है बेटा, देखो मैं सी, अगर मैं आपको दूं कोई वेक्टर है ऐसा, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, और मैं आपसे बोलूं कोई सी वेक्टर है लेट्स से 9k कैप, और मैं बोलूं क्या ए और सी वेक्टर परपेंडिकुलर हैं क्या, तो ए डॉट सी करके देखो, तो 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट 9k कैप, क्या ये जीरो होगा? यस सर होगा। कैसे होगा? क्योंकि 18 आई डॉट के प्लस 27 जे डॉट के, इसको लिखोगे 18
1 into cos 90 प्लस 27, 1 into cos 90, ये हो गया 0, ये हो गया 0, तो हो गया 0। Yes, sir. तो इसका Clear. मतलब A और C परपेंडिकुलर है कि नहीं है? Perpendicular है. तो दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि ये जो A वेक्टर है वो XY प्लेन में होगा, C, और ये C वेक्टर है वो Z डायरेक्शन में। तो इस प्लेन में जो भी चीज होगी, क्या वो इसके परपेंडिकुलर होगी? Yes, sir. होगी. तो इस प्लेन में जो भी चीज होगी वो इस लाइन की परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी? मान लो ये टेढ़ी लाइन, तो ये टेढ़ी लाइन इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं? है. क्योंकि वो XY प्लेन में है। तो ये XY प्लेन का वेक्टर है और ये k कैप का वेक्टर है, मतलब Z डायरेक्शन का वेक्टर है, तो ये आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। दैट्स इट। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. Clear. चलिए, तो इसको नोट कर लीजिएगा, करना है तो, अदरवाइज समान। Sir, 30 minutes. तो आप वेक्टर को अच्छे से कर लिया आपने, मतलब अब थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है वेक्टर में? नहीं आ रहा? Yes, sir. नहीं सर आ रहा है. वैसे ऐसे ही Yes, sir. सवाल हो आएंगे, गया. वैसे ज्यादा हार्ड नहीं आने वाला। Okay, sir. चलिए, अगला करें? तो ये भी नोट करना है? करना है तो कर लीजिए, डिपेंड्स ऑन यू। नहीं सर. नहीं करना आप नहीं देख मजा आ लीजिए। गया. चलिए ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, वेक्टर ए वेक्टर जो है वो है 2i कैप प्लस 3j कैप, एंड बी वेक्टर जो है वो दे रखा है i कैप प्लस j कैप। अभी आपको पूछा है, लेट्स से मान लो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। जस्ट सेकंड, मेरा कॉल आ रहा है ना। सी, क्वेश्चन दे रखा है, लेट्स से दिस इज ए वेक्टर, दिस बी वेक्टर, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। ठीक, अभी हमको ए का बी के अलोंग कंपोनेंट चाहिए, तो कौन सा कंपोनेंट होगा ए का बी के अलोंग? इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होगा? ए साइन. नहीं बेटा, ए कॉस थीटा। ए साइन थीटा, सॉरी सर एक. ए साइन थीटा तो इस बी के परपेंडिकुलर होगा। यस सर. ठीक है, अच्छा, सो ए cos थीटा विल बी along the b वेक्टर, ये बात पहले हो चुकी है ना। यस सर. ए cos थीटा विल बी along b वेक्टर। चलिए, ये बात अपन ने पहले भी करी है, तो हमको खाली ए cos थीटा का वैल्यू निकालनी है। अब ए cos थीटा कहां पड़ता है? कौन सी कैलकुलेशन करो जिसमें ए cos थीटा आ जाए? ऑब्वियसली ए डॉट बी करो, तो उसमें ए बी cos थीटा आएगा, तो यहां से ए cos थीटा भी निकल जाएगा। तो ए cos थीटा क्या आएगा? ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी। बोलो, ये बात समझ में आती है? यस सर. अभी ए डॉट बी कितना हुआ? ए डॉट बी निकाल के बताओ। 2i नहीं 2 प्लस 3. 3, 2 प्लस 3. 3, और बी का वैल्यू क्या होगा? b is the magnitude of b, which is nothing but 1 square plus 1 square। ये समझ में आता है? रूट. है ना? यस और सर. अगर a का मैग्नीट्यूड की जरूरत होती तो वो भी लिख सकते थे अपन, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, which is 4 plus 9, which is 213, और ये √2 आ जाएगा, तो आ जाएगा 5/√2। यस सर. क्लियर. समझ में आया क्या किया? यस सर आ गया. चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट जो आज आपने So भेजा, one. Yes sir, हो गया. सी नेक्स्ट क्वेश्चन ना, Yes sir. देखो अगला सवाल जो है वो ये है कि आपके पास 100 फोर्सेस दे रखे हैं, 100 फोर्सेस, और सबका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है और किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, और ऑब्वियसली सभी इक्वल एंगल बना रहे हैं एक दूसरे के साथ, है ना, सभी एक दूसरे के साथ इक्वल एंगल बना रहे हैं। सो कितना एंगल बना सकते हैं? मान लो हमारे पास n फोर्सेस हैं, कितने फोर्सेस हैं? n फोर्सेस, और टोटल एंगल कितना होता है? 2 पाई होता है कि नहीं होता टोटल? Yes sir. तो इसका मतलब है दो के बीच में एंगल कितना होगा? अगर n फोर्सेस के मतलब n फोर्सेस है और 2 पाई एंगल है, तो हर किसी के बीच में कितना एंगल डिवाइड होगा? मान लो आपके पास 100 अमरूद है और 2 पाई लोग हैं, तो हर किसी को कितने अमरूद मिलेंगे? या ऐसा बोल दो, आपके पास n लोग हैं और 2 पाई अमरूद है, ऐसा बोल, n आदमी है और 2 पाई अमरूद या आम है, तो हर आदमी को कितना आम मिलेगा? 2 पाई बाय n? Yes sir. नहीं समझ में आया? m नहीं आदमी सर, को समझ आया. 2 पाई आम है, तो हर एक आदमी को कितना आम मिलेगा? तो 2 पाई बाय n। इसका मतलब है कि हर किसी के बीच में कितना एंगल होगा? तो 2 पाई बाय n होगा, Yes sir. हर एक के बीच एंगल। अच्छा, n का वैल्यू क्वेश्चन में 100 दे रखा है, तो इसका मतलब सबके बीच में एंगल कितना आ गया? 2 पाई बाय 100 व्हिच इज नथिंग बट पाई बाय 50। ठीक है, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स? अच्छा, ये तो बड़ा सिंपल सी चीज है, हमने ये सवाल पहले भी कर रखा है, जिसमें 5 फोर्सेस थे और सभी इक्वल एंगल बना रहे थे, तो उनका नेट सम क्या आया? वो पांचों मिलके पेंटागन बना रहे थे। अगर आपको याद हो, अगर 4 फोर्सेस हो, Yes sir, zero. हाँ, Zero आ रहा था. 0 5 थे और पांचों ऐसे इक्वल एंगल पे लग रहे थे, 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे पांचों इक्वल एंगल पे लग रहे थे। तो हमने क्या किया था उस वाले केस में, इसको उठा करके यहां रख दिया था, इसको उठा करके यहां रख दिया था, है ना, इसको उठा करके यहां रख दिया था, और इसको उठा करके सॉरी इसको उठा करके यहां रख दिया था, इसको उठा करके समवेयर हियर यहां रखना पड़ेगा, इसको उठा करके यहां रखना पड़ेगा, और फिर इसको उठा करके यहां से यहां पे आने वाला, इसको उठा करके, तो ये वापस पूरा सम कितना हो जाएगा नेट? Zero. 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes sir. हमने वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इस वेक्टर को उठा के यहां रख दिया, ठीक है, सिमिलरली इस वेक्टर को उठा करके यहां रख दिया पैरेलली उसके, सिमिलरली इस वेक्टर को उठा करके यहां रख दिया, सिमिलरली इस वेक्टर को उठा करके यहां रख दिया, मतलब इसी इसी के साथ में, तो ये सबका सम कितना हो गया? 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्योंकि ये पेंटागन हो बना देंगे, जाएगा. अगर इक्वल एंगल बना रहे हैं सभी एक दूसरे के साथ, तो ये पेंटागन बनने वाला है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी क्या बनेगा इनका, यहाँ पे इसको पॉलीगॉन बनेगा, इसको इसको कुछ नाम नहीं होगा क्योंकि एन साइड्स हैं इसकी, तो ये पॉलीगॉन बनेगा। तो ये जो पॉलीगॉन बनेगा तो नेट सम कितना होगा, क्योंकि सभी पॉलीगॉन में एन साइड्स होंगी, और एन साइड का जो पॉलीगॉन होगा जिसमें एन साइड्स है, गिन नहीं कर सकते, ये सब मिलकर के यहाँ आएंगे, तो नेट सम कितना हो जाएगा उसका? Zero. 0 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 0। बोलो, ये क्लियर? Yes sir, clear. चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला सवाल। The sum of magnitude of two forces acting at a point is 18 and the magnitude of the resultant is 12. If the resultant is at 90 degree the force of smaller magnitude, what are the magnitude of force? The sum of magnitude of two forces acting at a point is 18। अच्छा, दो फोर्सेस हैं, मान लो एक फोर्स है A और दूसरा फोर्स है B, ठीक है, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है उसका सम 18 दे रखा है, A प्लस B जो दे रखा है 18। इज इट क्लियर? Yes sir. द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 12। उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? रिजल्टेंट ये होगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये मैग्नीट्यूड होगा। और इसका सम दे रखा, ये जो दे रखा है वो 12 दे रखा है। इफ द रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, अच्छा इनमें से मान लेते हैं ए बड़ा है और बी छोटा है, तो जो बी के साथ जो रिजल्टेंट है वो कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो ये बी है और ये आर है, तो इसका मतलब ए कहाँ होगा, ए ऐसे होगा Yes, कि sir. ए ऐसे होगा, सर आर की तरफ होगा। ए आर की तरफ होगा कि आर से इस तरफ जा रहा होगा, सी आर की तरफ होगा। सी अगर मैं ऐसे कर देता हूं, देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, ए को मैं ऐसे भी बना सकता हूं या मैं ए को ऐसे बना सकता हूं। ए को ऐसे बना सकता हूं। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, दिस इज करेक्ट और दिस इज करेक्ट, ऑप्शन ए सही है। सी। इसमें क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ, सी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि बी और आर जुड़ करके ए बना रहे हैं, ऐसा है क्या, नहीं सर। वास्तव में क्या है, ए और बी मिलके आर बना रहे हैं, यस सर। और इसका मीनिंग क्या हो गया, बी और आर मिलके ए बना रहे हैं। यस सर। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग हुआ ए बी और आर तीनों एक ही डायरेक्शन में, तो इन सबका सम कितना हो जाएगा, 0। हो जाएगा। इसका मतलब दोनों ही गलत है। तो आप कहोगे सर फिर सही क्या होगा, तो सही ऐसा होगा, देखो बी वेक्टर ऐसा होगा, आर वेक्टर ऐसा होगा और ए वेक्टर ऐसा होगा। अब देखो ए वेक्टर ये और ये बी वेक्टर, इन दोनों को जोड़ोगे, इस ए वेक्टर को और बी वेक्टर को दोनों को जोड़ोगे तो आर वेक्टर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। आएगा ना, क्योंकि ये दोनों इस तरफ जा रहे हैं, आर ऐसा है। तो ये डायग्राम बनेगा इसका। देखो डायग्राम में कितना झोल है, ये समझ में आ रहा है। अगर गलत यस डायग्राम सर। कर दिया तो गलत कैलकुलेशन पे पहुंच जाओगे। ओके, तो निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। ओके, सो दैट मींस इनके बीच का एंगल क्या होगा, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में ये एंगल होगा, मान लो लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, सो दिस इज थीटा और दिस इज आउटर साइड इज थीटा, आउटसाइड। सो ए और बी के बीच में एंगल ये वाला तो नहीं होगा, ये बात तो पक्का समझ में आती है क्या, यस सर। ये तो हेड और टेल के बीच में, हेड और टेल के बीच में एंगल वाला नहीं होगा, तो इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा, इसको उठा करके शिफ्ट करके यहाँ रखना पड़ेगा। तो अगर इसको शिफ्ट करके मैं यहाँ रखूं तो ये एंगल जो होगा वो होगा आउटसाइड वाला, या आप कहो कि बी को यहाँ रख दो, कैसे भी कह दो, बी को यहाँ रख दोगे तो ये आउटसाइड वाला एंगल होगा। बोलो ये क्लियर, यस सर। तो दिस एंगल इज थीटा, तो बेसिकली यहाँ जो थीटा रखा है वो ये बाहर वाला थीटा है। इस फॉर्मूले में जो थीटा आएगा वो क्या आएगा, दिस थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, नथिंग बट एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी। और ए एंड बी के बीच में एंगल आउटसाइड का है, अंदर का नहीं है। ये बात समझ में आ रही है, तो ये कहां तक, ये कंक्लूजन कैसे पहुंचा, पहले राइट डायग्राम बनाया तब पता पड़ा, अगर डायग्राम ये बना देते ना आप तो आप कहते हैं कि सर ये अंदर का ही तो थीटा है, यस सर। गलत गड़बड़ हो जाती है ना। यस सर। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे केयरफुल रहना है। चलिए अब क्या करें, तो ओके, सो वन थिंग इज क्लियर, ये डायग्राम हमको देखा, तो इन बाकी दो डायग्राम की हमको जरूरत नहीं, मैं फिर से अगले पेज पे सारा कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा हो गया। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास है a प्लस बी 18 की, और एक इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 144। ये 144 कैसे हुआ, 12 का स्क्वायर, इस पे रूट हटा दिया, यस सर। ठीक है। और दूसरा डायग्राम हमारे पास था, ये बी था, ये ए था, और ये हमको पता है रिजल्टेंट,
हाँ, रिजल्टेंट आर नीचे की तरफ था, सॉरी, द रिजल्टेंट आर विल बी डाउनवर्ड्स फ्रॉम हियर टू हियर, जैसे रिजल्टेंट आर था, और ये एंगल है हमारा थीटा। ओके, रिजल्टेंट का वैल्यू है 12, सो ऑब्वियसली दिस एंगल इज हाउ मच, पाई माइनस थीटा, Yes, sir. है ना, दिस एंगल इज पाई माइनस थीटा। तो अब कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो एक इक्वेशन ये भी बन रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर ये ट्राइंगल बना हो गया ऐसा, क्या गड़बड़ नहीं हो जाएगा? So a square plus r square होना चाहिए ना equals to. नहीं So नहीं, बी b स्क्वायर square प्लस plus आर r. स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सॉरी, ये ए, ये Yes. बी और ये आर, तो यहाँ इक्वेशन बनेगी बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बोलो, ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, ये समझ में आ गया आपको। अभी क्या करें, समझ में तो आ गया। देखो यहां से ये समझ में आएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये समझ में आता है। Yes, sir. देखो तो यहाँ पे इस इक्वेशन का कोई यूज नहीं है, इसका मतलब देखो ये इक्वेशन हालांकि निकाल ली, मुझे अब देख के समझ में आ रहा है कि इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि ये पहली इक्वेशन और दूसरी ये काम की है, इन दोनों से ही सारा खेल खेला जाएगा, शायद ऐसा लग रहा है। अभी देखते हैं क्या निकलेगा। आर स्क्वायर का वैल्यू 12 का स्क्वायर, तो इट इज 12 स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. तो ये 144, ए प्लस बी का वैल्यू 18 है, Yes, sir. तो ये आ जाएगा ए माइनस बी। देखो कैलकुलेशन कैसे होती है इसमें, कितनी अजीब सी कैलकुलेशन, ऐसा सोचा था ऐसा होगा कुछ। 144 बाई 18 इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो यहाँ से ए माइनस बी और ए प्लस बी पता पड़ गया, ए प्लस बी पता पड़ा 18 और ए माइनस बी पता पड़ा 144 बाई 18। तो अब इन दोनों को अगर ऐड कर लूं तो मेरे पास 2a इज इक्वल टू व्हाट, क्या आएगा, 18 प्लस 144 बाई 18। इसको सॉल्व करना, 144 बाई 18 कितना आता 8. है? 8 होता है। Yes, sir. तो ये 18 और 8 कितना हो गया, 26। Yes, sir. ए का वैल्यू कितना आ गया, 13। Yes, sir. आ गया. तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5. ये क्लियर है? Yes, sir. Clear. तो इस इक्वेशन का हालांकि लिखा पर यूज नहीं हुआ हमने, एक तो ये दे रखा था और दूसरी पाइथागोरस थ्योरम बन गई, उसका यूज लिया हमने, और फिर यहाँ पे ऐसा बना तो a प्लस बी की जगह 18 लिख दिया, तो हमें पता पड़ा a माइनस बी आया और a प्लस बी ऑलरेडी दे रखा था, फिर दोनों को ऐड करके a निकाल लिया, फिर एक में वैल्यू पुट कर दी तो b निकल जाएगा। Yes, sir. चलिए So एक second. हम्म, Yes, sir. हो गया. चलिए नेक्स्ट, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर a and b is perpendicular to vector a and magnitude half, then ये भी अच्छा सवाल है, ऐसा ही है, अच्छा इसी तरह का है। क्या सवाल है, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए। दो वेक्टर है ए और बी, इनका रिजल्टेंट जो है वो मान लेते हैं आर है। देख, अब इनका जो रिजल्टेंट आर है वो ए के परपेंडिकुलर है, तो ए ऐसा होगा, और मान लेते हैं हमको नहीं पता तो हमने मान लिया आर ऐसा है, ठीक है। पर ऐसा Yes, sir. करने में गलती कर रहे हैं, अगर ए ऐसा है और आर ऐसा है, इसका मतलब ए और आर जुड़ रहे हैं, ये मतलब नहीं हुआ क्या इसका? Yes, sir. समझ में आ रहा है?
यस सर, तो आर की डायरेक्शन नीचे होगी। आर की डायरेक्शन नीचे होगी, तो आर की डायरेक्शन नीचे होगी, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में था। तो जो बी होगा, यस सर। और ए का मैग्नीट्यूड है वो एन, resultant of two vector a b is perpendicular to the vector a and its magnitude is half the magnitude of vector b, और इसका जो मैग्नीट्यूड है r का वो वेक्टर b का मैग्नीट्यूड का आधा है, ऐसा दे रखा। तो b वेक्टर तो ऐसा होगा कि नहीं होगा? यस सर। अच्छा, ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल, क्योंकि a और b के बीच में एंगल ये होगा थीटा। यस सर। हमको ये थीटा निकालना है, ये अंदर वाला थीटा नहीं होगा, बाहर वाला थीटा होगा। बोलो ये क्लियर है? यस सर। अच्छा, तो अब ये ट्राइंगल बना दो, बड़ा आसान से ट्राइंगल बनेगा। देखो अब ये सवाल कुछ भी नहीं है इस सवाल में, ये ए बी और ये बी बाई टू, ये मान लो एंगल अल्फा, तो टेन अल्फा कितना है, ये साइन अल्फा कितना आएगा मतलब बी बाई टू बाई बी। यस सर। आर का मैग्नीट्यूड बी बाई टू है, मैंने आर का मैग्नीट्यूड लिख दिया बी बाई टू, और ये बी, तो बी बाई टू बाई बी कितना हो गया, ये हाफ। तो अल्फा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। अगर यस सर। ये एंगल 30 है तो बाहर वाला थीटा कितना हुआ, 150। 150। So this angle is 150 degree between this is the angle between A and B. ये क्लियर है? यस सर, क्लियर। चलिए, कर लिया नोट? नहीं सर, 2 मिनट। यस सर, डन। चलिए ठीक है। A car travels 6 kilometer towards the north at an angle of 45 degree to the east. अच्छा, a car travels 6 kilometer towards the north, तो एक कार है वो 6 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाती है at an angle of 45 degree to the east। अच्छा, ईस्ट के साथ 45 डिग्री का एंगल बना करके एक कार चल रही है ऐसा, ऐसा ही मतलब है इसका? सर नहीं समझ आया मतलब। मतलब समझ नहीं आ रहा? क्वेश्चन कह रहा है देखो नॉर्थ की तरफ चल रहा है ऐसा भी कह रहा है, और कह रहा है कि एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द ईस्ट, और मतलब ईस्ट, ये ईस्ट है ना, यस सर। तो ईस्ट के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए देखो दो तरह से चल सकती है। ईस्ट के साथ अगर 45 डिग्री का एंगल बनाए तो साउथ में भी तो चल सकती है ऐसे, यस सर। लेकिन नॉर्थ में चल रही है, तो इसका मतलब वो ऐसे ही चल रही है। और आप कहोगे सर ओके सर। यहाँ समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। तो ये मतलब है इसका। एंड देन ट्रेवल्स a distance of then travels distance of 4 kilometer towards the north at an angle of 135 to the east। अच्छा, अब इसके बाद 135 के एंगल से टू द ईस्ट, ईस्ट के साथ 135 का एंगल मतलब इस क्वाड्रेंट, ये तो 90 हो जाएगा। अब ईस्ट के साथ 135 डिग्री का एंगल पे चलता है, हाउ 4 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, मतलब अब 4 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ ऐसे चलता है, तो 6 किलोमीटर ऐसे चला, तो 4 किलोमीटर ऐसे चला। बोलो ये क्लियर है? यस सर, क्लियर। ये 135 के एंगल पे, दिस एंगल इज 135। थोड़ा अलग टाइप का सवाल हो गया। तो ये पॉइंट इस पॉइंट से कितना दूर है ये निकालना कौन सा पॉइंट? है। ये जिस पॉइंट पे फाइनली पहुंचा ना, नहीं नहीं ऐसा ये पॉइंट नहीं नहीं, ये जो लाइन ज्वाइनिंग बनेगी
हाउ फार इज द पॉइंट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, हाँ तो सही है। तो ये वाला पॉइंट इस स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, पहली बात तो ये, और इन दोनों को अगर ज्वाइन कर लिया जाए तो ये लाइन कितना एंगल बना रही है थीटा, ये भी निकालना है। शायद ऐसा ओके ही सर। होगा। तो चलिए इसको अलग डायग्राम में फिर से बनाते हैं। एक बार तो समझ लिया हमने क्या करना था। लेट्स ट्राई इट, करें कोशिश। तो ये 45, ये गया 6 किलोमीटर, और यहाँ 6 किलोमीटर जाने के बाद ये 4 किलोमीटर ऐसे चल रहा है 135 डिग्री का एंगल। ये समझ में आ रहा है? यस सर। तो अब क्या करोगे बताओ। सी, इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हो। इस 6 के दो कंपोनेंट कर लो, इस 6 के दो कंपोनेंट कर लो। ये कंपोनेंट कितना होगा 6 का, 6 cos 45, 45 और ये कंपोनेंट कितना होगा 6 6 sin sin 45। 45। अच्छा, उसी तरह से अगर ये 135 है तो ये एंगल कितना हुआ 45 हुआ, यस सर। 45 हुआ नहीं हुआ। तो 4 के यस दो सर। कंपोनेंट कर लो, ये कंपोनेंट कितना आएगा 4 cos 45, यस सर। और ये कंपोनेंट कितना आएगा 4 sin 45। 4 sin 45। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 cos 45 है और ये 4 sin 45 है। बोलो क्लियर है? यस सर। तो अभी क्या करना है इसका, इसका ये करना है कि ये 4 cos 45 तो कम हो गया, ये डिस्टेंस तो, ये 4 cos 45 है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बची है ये वाली 6 cos 45 माइनस 4 cos 45, 2 cos 45। 2 cos 45। दैट मींस ये डिस्टेंस है 2 cos 45। ये क्लियर है काले अक्षर वाली? यस सर क्लियर। अच्छा, ये हाइट है 6 sin 45, और ऊपर ये हाइट है हमारे पास कितनी है 4 4 sin sin 45। तो 45। टोटल हाइट कितनी होगी यहां से 10 लेकर sin के, 45। तो ये हाइट हो गई 10 sin 45। तो अब हमारे पास ये ट्राइंगल बना, यहां से लेकर के ये डिस्टेंस निकालना है। तो हमारे पास ट्राइंगल ये बना, एक तो बना ये वाला 2 cos 45 का, ये हाइट का, मतलब ये बेस लेंथ का, और ये बना 10 sin 45 का। और हमको यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस निकालिए, नहीं निकलेगी क्या ये? हाँ सर समझ आ गया। ये 2/√2 और ये आ जाएगा 10/√2। तो डी डिस्टेंस इज लेट्स से डी। यस सर। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2/√2 का स्क्वायर प्लस 10/√2 का स्क्वायर। तो ये आएगा 4/2 प्लस 100/2, तो आ जाएगा 104/2, दैट इज 52 टी स्क्वायर। तो डी का वैल्यू आएगा √52 किलोमीटर। ये क्लियर है? यस सर क्लियर। एंड आल्सो आपको निकालना है, क्या निकालना है थीटा। ये एंगल थीटा निकालना है, ये वाला, ये कौन सा, ये वाला, ये एंगल थीटा। तो ये थीटा निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू 10/√2 डिवाइडेड बाय 2/√2। समझ में आ रहा है? नहीं सर। अरे ये ट्राइंगल છે ને આ थीटा છે, आ 10/√2 और ये 2/√2, तो tan थीटा कितना होगा 10/√2, 2/√2, √2 से √2 गया तो 5, यस सर। तो tan थीटा आया 5। तो एंगल ये वाली जो लाइन बना रही है, ये वाली और ये वाली ने, मतलब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, स्टार्टिंग पॉइंट को और एंड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन जो ईस्ट के साथ एंगल बना रही है वो निकालना है, वही तो निकालना है। तो ईस्ट के साथ यस कितना सर। एंगल बना रही है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5। बोलो क्लियर? यस सर क्लियर। चलिए। सर एक सेकंड।
अच्छा, सारे सवाल आप पिछले साल के सॉल्व कर रहे हो ऐसा? पिछले ईयर्स के, प्रीवियस ईयर्स के? यस सर। नहीं नहीं, अच्छा है, करो, गुड। सर हो गया। चलिए ठीक है। The particle moves towards its with velocity 5 meter per second, and after 10 seconds, its direction changes towards north with the same velocity. The average acceleration of the particle is, देखो एक पार्टिकल है जो मूव करता है टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ चलता है जैसे 5 मीटर पर सेकेंड से, ये क्लियर है? यस सर। चलता है एंड आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज करता है टुवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ चलता है विद द सेम वेलोसिटी। एक्चुअली गलत दे रखा है, सेम वेलोसिटी कैसे हो सकती है, डायरेक्शन बदल गई ना, विद द सेम स्पीड होना चाहिए। यस सर। तो ये गलत दे रखा है, क्वेश्चन में गड़बड़ क्या दे रखी है, उन्होंने दे रखा है विद द सेम वेलोसिटी, नो नो विद द सेम वेलोसिटी। ये 5i कैप है और ये 5j कैप है, दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? यस सर, मैं समझ गई। तो एक्चुअली विद द सेम स्पीड क्वेश्चन में होना चाहिए, विद द सेम स्पीड। अच्छा, बड़ा आसान। तो ये हमारे पास v1 वेक्टर हो गया, ये हमारे पास v2 वेक्टर हो गया, हमको एक्सेलरेशन निकालना है। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन? इज एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन होता है डेल्टा v बाय डेल्टा t। बोलो होता है नहीं होता है? यस सर। v2 minus v1 upon t2 minus t1, that is 5j cap minus 5i cap divided by total time taken stand। बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, निकाल सकते हो? ये हाफ j cap माइनस हाफ i cap। तो इसको ड्रॉ करो क्या, ये एवरेज एक्सेलरेशन आ गया, बोलो यहां तक क्लियर है? यस सर। नहीं आया? नहीं सर, आ गया। तो एवरेज एक्सेलरेशन को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आई एम ड्रॉइंग दिस। आप ड्रॉ करके बताओ किस तरफ आएगा ये। मेरा कहने का मतलब समझ में आ रहा है, ड्रॉ करने से क्या मतलब? यस थोड़ा ड्रॉ थोड़ा। किया ना इसको, 5i कैप को इस तरफ ड्रॉ किया, इसको यहाँ ड्रॉ किया, वैसे ही हाफ जे कैप कहाँ आएगा, ऊपर। सर मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। हाफ जे कैप ऊपर आएगा, माइनस हाफ आई कैप यहाँ पे आएगा। यस सर। तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा वो ये होगा, क्योंकि इन दोनों का सम है एवरेज एक्सेलरेशन, इसका और इसका। तो ये एवरेज, यस सर। ये एवरेज एक्सेलरेशन है। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या आ रहा है बताओ? मैग्नीट्यूड पूछा है। देखो मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट? इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट हाफ स्क्वायर प्लस हाफ स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4। ये समझ में आ रहा है? अंडर रूट यस सर। 2/4 विच इज अंडर रूट 1/2। तो कितना मैग्नीट्यूड आया इसका? 1/√2। यस सर। नहीं समझ में आया, मैं यहाँ से यहाँ तक ले गया, ऐसे उल्टा ले गया। नहीं सर, आ गया समझ। और डायरेक्शन कौन सी है इसकी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर? इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट। क्लियर? यस सर, क्लियर। तो आंसर इज 1/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नॉर्थ वेस्ट। यस। सो बेसिक था ये तो, एवरेज एक्सेलरेशन का जस्ट फॉर्मूला यूज करना था। और ये आई कैप से जे कैप में जा रहा है, तो किस तरह से उसको देखेंगे, वो सारी चीजें थी। एंड हियर इज द आंसर। यस सर। चलिए अगला सवाल। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। An object of mass m kg with speed v meter per second strikes a wall at an angle theta and rebounds at the same speed and same angle. The magnitude of change in momentum of the object will be, see, इसमें भी यही कुछ है।
अगर ये v स्पीड से स्पीड v है, देखो यहाँ पे स्पीड दे रखा है ना उसने, सेम स्पीड दे रखा है क्योंकि डायरेक्शन तो बदल गई। यस सर। डायरेक्शन बदली इसका मतलब वेलोसिटी तो सेम नहीं हो सकती, क्या सेम होगा, स्पीड सेम होगा। तो स्पीड यस सेम सर। दे रखी है ना, तो इस वाले क्वेश्चन में सही दे रखा है, स्पीड इज सेम। तो ये थीटा, ये थीटा। अभी मैं v के दो कंपोनेंट करता हूँ, इस v के दो कंपोनेंट कर लो। एक कंपोनेंट होगा इस तरफ और एक कंपोनेंट होगा इस तरफ, बोलो क्लियर। वन विल बी हियर एंड अदर विल बी हियर। तो ये कंपोनेंट कितना होगा, व्हाट इज दिस कंपोनेंट, v sin थीटा, v sin थीटा, एंड व्हाट इज दिस कंपोनेंट इज v cos थीटा। v cos थीटा, है ना। तो वो इसका कंपोनेंट कर लिया। अब मैं इसके को दो कंपोनेंट करता हूँ, इसके कंपोनेंट यहाँ कर लेता हूँ, तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगी, ये थीटा। तो ये होगा ये v, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा और ये हो जाएगा v sin थीटा। सी, यस अब सर। आप देखो ये समझ में आ रहा है क्या। यस सर, आ रहा है। टकराने के पहले दो कंपोनेंट थे इस तरफ, एक था v sin थीटा और दूसरा नीचे था v cos थीटा, था कि नहीं था। ये वेक्टर ऐसा यस सर। और दूसरा वेक्टर ऐसा और इन दोनों का नेट ये। अच्छा, टकराने के बाद ये ऐसा और ये ऐसा, बताओ कौन सा कंपोनेंट चेंज हुआ। v cos थीटा। v cos था, v sin थीटा तो ऐसा कैसा है ना, v cos थीटा चेंज हुआ। इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम निकालना है। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, डेल्टा p, p2 minus p1, that is mv2 minus mv1। बोलो ये क्लियर है क्या। यस सर। लेट्स से दिस इज v1 एंड दिस इज v2। तो व्हाट इज v1 वेक्टर, अगर मैं लिखूं, वैसे ही कैंसिल हो जाएगा लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूं। v1 वेक्टर जो होगा वो होगा v sin थीटा आई कैप, और ये माइनस में आएगा तो नेगेटिव आएगा, माइनस v cos थीटा जे कैप। बोलो ये क्लियर है v1 वेक्टर। यस सर। और v2 वेक्टर क्या होगा बताओ, आप बताओ। सी, मैंने v1 v2 क्यों लिखा, v1 v2 इसलिए लिया क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, स्पीड सेम है, स्पीड सेम है पर डायरेक्शन अलग है, इसलिए इसको v1 वेक्टर बोल सकते हैं, इसको v2। दो वेलोसिटी अलग है, v1 वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू v2 वेलोसिटी, बट यस v1 इज इक्वल टू v2 व्हिच इज इक्वल टू v। ये बात क्लियर है क्या। यस सर। थक गए। नहीं सर, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया बहुत, मतलब थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। देखो मैं कह रहा हूं दो वेक्टर, वेक्टर अलग है, वेलोसिटी डिफरेंट है, इसका मतलब है वेक्टर, अगर वेक्टर की फॉर्म में देखोगे तो दोनों अलग अलग हैं, इसलिए दोनों सेम नहीं है, पर स्पीड सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है। ओके सर। मतलब ये अगर 20 से इस तरफ आ रहा है तो ये भी 20 से इस तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है ये है कि 20 जो मैग्नीट्यूड है वो 20 है दोनों का, लेकिन डायरेक्शन तो दोनों की अलग है ना, यस सर। तो इसलिए वेक्टर तो अलग है दोनों, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का। ये बात समझ में आ रही है क्या। यस सर। पक्का। सर माइनस जी के बेटा क्योंकि ये नीचे की तरफ है, माइनस जे कैप, ओके सर, हाँ समझ आ गई सर। ये आई कैप और ये माइनस जे कैप नीचे की तरफ। अच्छा इसका बताओ क्या यस सर, लिखोगे, समझ आ गई। इसका बताओ। इसका होगा v cos थीटा आई कैप, नहीं जे कैप प्लस v sin थीटा आई कैप। हाँ तो मैं आई कैप वाले को पहले लिख देता हूँ, v sin थीटा आई कैप प्लस v cos थीटा जे कैप। बोलो क्लियर है। यस सर, क्लियर। है ना, ये v और थीटा एक जैसा दिख रहा है मेरा, थीटा भी ऐसा ही है और v भी ऐसा ही है। एनीवेज, तो आपको m तो बाहर निकाल लोगे, v2 माइनस v1 निकालना है, v2 माइनस v1, तो कैसा आएगा v2 माइनस v1। सब्ट्रैक्शन। यहाँ थी, यहाँ कैंसिल थी, क्यों पे इन दोनों को माइनस करोगे तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, यस सर। और इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2 2 cos 2v थीटा cos जे थीटा, कैप। 2v cos यस थीटा। सर, 2। बोलो क्लियर है। यस सर, क्लियर। तो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। यस सर। ओके 2mv सर, cos समझ आ थीटा, गया। समझ, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ना खाली अपन को,
तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका? मैग्नीट्यूड आएगा 2mv cos थीटा। बोलो क्लियर? Yes, sir. Clear. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंट। Yes, sir. चेंज इन मोमेंटम। चलिए इसको नोट कर लीजिए, अगर कुछ समझ में आ रहा हो तो। नहीं आ रहा हो तो अगले टर्म पे फिर देखेंगे। कोई नहीं डाउट हो सर, जाए? हाँ नहीं सर, अभी तक तो कोई डाउट नहीं है। नहीं है पक्का? हाँ सर, पक्का। चलिए चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन आप करिए। ए प्लेन इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ विद a speed of 100 किलोमीटर पर आवर। जी सर, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, बड़ा आसान है, कुछ खास नहीं है। और मेरे हिसाब से अगले आप एक बार ट्राई करके देखना, सिंपल है, समझ में आएंगे। और देखो, ए प्लेन इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ये अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ एक प्लेन घूम रहा है। ठीक, ये प्लेन घूम रहा है विथ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। 100 किलोमीटर की स्पीड से घूम रहा है, 100 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रहा है। एट अ कांस्टेंट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस से किसी पर्टिकुलर हाइट पे है, हाइट इज कांस्टेंट। चेंज इन वेलोसिटी एज इट ट्रैवल्स हाफ सर्कल। अगर ये हाफ सर्कल घूम जाता है, मतलब ये यहां से लेकर के यहां पहुंच जाता है, तो बताओ स्पीड में कितना चेंज हुआ? यहां पहुंच गया 100 स्पीड तो किलोमीटर, वही रहेगी। तो स्पीड में चेंज क्या हुआ? चेंज इन स्पीड कितना? स्पीड 0। में 0 पक्का? यस, क्योंकि 100 यहां पर भी 100 है, यहां पर भी 100 है, तो चेंज इन स्पीड कितना आएगा? 0। बट चेंज इन वेलोसिटी इज 0 और नॉट? नॉट वेलोसिटी 0। नॉट 0, तो कितना होगा चेंज इन वेलोसिटी? लेट्स से हियर वेलोसिटी इज v1 वेक्टर एंड हियर वेलोसिटी इज v2 वेक्टर। तो मुझे बताओ v1 वेक्टर क्या होगा? 100 आई कैप होगा कि नहीं होगा? यस सर, होगा। और v2 वेक्टर क्या होगा? 100 माइनस आई कैप। -100। ये समझ में आ रहा है? यस सर। So change in velocity is v2 minus v1. So it is minus 100 I cap minus of 100 I cap, क्योंकि v1 का तो 100 I cap है, ये माइनस 100 है, तो माइनस 200 I cap। तो ये चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v। और आपको क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है ना, द चेंज इन वेलोसिटी एज इट ट्रैवल्स। तो इसका खाली मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड पूछा आपको, सवाल में आई कैप नहीं दे रखा है। मतलब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो कितना आएगा? ओनली 200। यस सर। 200 से चेंज हो गई, देखो 200 से ही चेंज हुई। पॉजिटिव 100 से नेगेटिव 100 हो गई, मतलब कितनी चेंज हुई? आपके पास 100 रुपए हैं और आपके पास 0 हो गया, इसका मतलब कितना चेंज हुआ? 100 चेंज है। 100 चेंज हुआ। लेकिन अब आपके पास 100 रुपए उधार भी हो गए किसी के, तो कितने चेंज हो गए? 200। 200। मतलब आपके पास 100 रुपए थे और 0 हो गए, तो 100 से चेंज हुआ। लेकिन अब आप एकदम नेगेटिव में पहुंच गए, आपको किसी को और को लौटाने भी है 100 रुपीज, तो आपके पास कितने हो गए? 200 हो गए कि नहीं हो गए? 100। तो ये 100 से नेगेटिव 100 में हो गया, तो चेंज हुआ 200 का। बोलो ये क्लियर? स्पीड और वेलोसिटी में चेंज समझ में आ रहा है क्या मतलब? यस सर। चलिए, तो इसी के साथ ये क्लास यहीं एंड कर रहे हैं। अगली क्लास में बाकी के 3 सवाल हम देखेंगे। तब तक आप कुछ और सवाल यस। तैयार करिएगा, ठीक है? यस सर। सर, एक सेकंड। ओके। और इसी तरह से सवाल सॉल्व करते रहो तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा कि हाँ आप मेहनत कर रहे हो ऐसे। यस सर। चलिए चलिए, लेकिन आपको ये फोटो खींच खींच के डालने में भी टाइम लगता होगा नहीं? यस सर, मैं क्रॉप करके फिर डालती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, ऐसे डाल दिया करो, मुझे नंबर लिख दिया करो। सर ये क्लास में पूछ लिया करो कि सर ये क्वेश्चन है, तो मैं पढ़ लूंगा।
क्रॉप अप करने में मेहनत मत किया करो, यस सर। है ना। क्लास में जैसे कि आपने एक बार डाल दिया, फिर बोल दो सर इसमें ये नंबर का क्वेश्चन है, ये नंबर का क्वेश्चन है, ये नंबर का क्वेश्चन है, तो ठीक है फिर। सर चलिए, यस सर, हो गया। थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग। हम फिर मिलेंगे अगली क्लास। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, बाय बाय सर। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर।